So if you remember, last time we were discussing the factors affecting primary production. Rather, we are discussing the aquatic microbiology. And if you remember, last time we just discussed the microbial loop, right? So this is the microbial loop, which we discussed last time. And today we are going to continue with the aquatic microbiology. And in that, we are going to discuss the factors affecting primary production in aquatic environment. So what are the factors which affect the primary production in aquatic environment? So number one is the availability of essential inorganic nutrients, particularly nitrogen and phosphorus, which are most often limiting in aquatic environment. So आमतौर पे aquatic environment has limiting availability of nitrogen and phosphorus. So that is why that this affects the primary production. If sufficient nitrogen and phosphorus is provided or is available in the aquatic environment, then there can be better primary production in that aquatic environment. So considering that factor, the open seas and freshwater lakes are low productive. जो खुले समुंदर होते हैं या फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, these are low productive or oligotrophic, whereas the coastal areas and shallow freshwater bodies are productive or eutrophic. ठीक है, जो coastal areas होते हैं वो और जो shallow freshwater bodies होती हैं वो ज़्यादा productive होती हैं, और even sometimes these become eutrophic, कि न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है. Then another factor which affects the primary production is the water temperature. What is the temperature of water? If that is suitable for the microbial population, that's well and good. If that is not suitable for the whatsoever the primary production is, that will not of course favor the primary production. Turbidity of water. Turbidity actually is related to the presence of organic matter in the soil or in the aquatic water. So if the organic matter, or I'm talking of the particularly dissolved organic matter, if the organic matter in water is high, it means there will be more food available for the primary producers, so there will be more primary production compared with the clean water or where there is less organic matter. So those were the factors for primary production. Then what is the secondary production? The production of bacterial biomass is the secondary production. A major pathway for utilization of photosynthesis, as well as pathway for the transfer of carbon and energy to higher trophic levels in aquatic environment. So secondary production is the major pathway for the utilization of photosynthesis, as well as it is the pathway for the transfer of carbon and energy to higher trophic levels in aquatic environment. So जो primary producers होते हैं वो जो भी produce करते हैं, हमने microbial loop में ये सारा पढ़ा था, जो primary producers होते हैं वो आगे उनको फिर bacteria use करते हैं, then it comes the secondary production, and this is the major pathway for utilization of photosynthesis, as well as the pathway for transfer of carbon and energy to higher trophic levels. अब ये secondary producers, फिर primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, इस तरह से पूरा cycle चलता है. This was about the planktonic environment. We are discussing the different habitats, if you remember. So then comes the benthic habitat.
benthos. Benthic is from word benthos. Benthos actually stands for the transition zone between the water column and the mineral subsurface. ये वो जगह है जहाँ पे जस्ट वाटर कॉलम और मिनरल सबसरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, जस्ट मिल रही हैं जहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज बेंथिक हैबिटेट। पानी और सॉलिड सबसरफेस जहाँ पे आपस में मिलती हैं उसको हम बेंथोस कहते हैं। और ये जो हैबिटेट है, जो माइक्रो इसमें इस हैबिटेट में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसको हम बेंथिक हैबिटेट कहते हैं। A diffuse and non-compacted mixture of organic matter, mineral particulate material and water. This benthos is actually a diffuse and non-compacted mixture of organic matter, mineral particulate material and water. जहाँ पे just पानी सरफेस को टच कर रहा है उसे हम बेंथोस कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक नॉन कंपैक्टेड मिक्सचर होता है जो कंपैक्ट नहीं हुआ होता अभी, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल पार्टिकुलेट मैटर और वाटर का जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो जहाँ पे नीचे बैठते हैं, जस्ट बैठते हैं, अभी कंपैक्ट नहीं हुए, दैट इज बेंथोस। देयर इज dramatic increase in concentration of microbes as much as 5 order of magnitude compared with planktonic environment. So planktonic environment की बजाय benthic habitat में 5 गुना ज़्यादा तक पॉपुलेशन हो सकती है माइक्रोब्स की, ठीक है। सो जो पानी में सस्पेंडेड माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो बेंथिक इन्वायरमेंट है उसमें उसकी पॉपुलेशन सस्पेंडेड वाटर से वाटर में सस्पेंडेड माइक्रोब्स से 5 गुना ज़्यादा तक हो सकती है। रीजन ऑफ कोर्स इज द मोर ऑर्गेनिक मैटर and the nutrients available over there. Below interface zone, microbial number decreases due to oxygen depletion. अब वो जो इंटरफेस है जहाँ पे वो मिल रहे हैं, जब उससे ज़्यादा गहराई में जाते हैं आप तो माइक्रोबियल नंबर डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्लीशन। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, सो इस वजह से वहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम हो जाएगी। Then comes the microbial mats. Microbial mats क्या होते हैं? These are interfacial aquatic habitat in which microbial groups are laterally compressed into a thin mat of biological activity. So क्या होता है इसमें कि aquatic में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लेटरली हॉरिजेंटली डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में, ये ऐसे समझ लें आप कि जैसे डिफरेंट मैट नहीं होते, ये जो दरवाजे पे रखने वाला मैट होता है, इस तरह से वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसको हम माइक्रोबियल मैट कहते हैं। अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। Thickness of mat ranges from several millimeter to centimeter in depth. इनकी thickness मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक हो सकती है। And the unique communities, ये यूनिक क्यों है? Because of interdependent microbial components form clearly stratified and distinctively colored zones. इसलिए ये यूनिक है कि एक ख़ास किस्म के माइक्रोबियल कंपोनेंट्स जब एक ख़ास लेयर में स्ट्रेटिफाई होते हैं, लेयर बनाते हैं, अलहदा होते हैं, तो वो आपको एक अलहदा ही कलर नज़र आता है। इस तरह से आपको नज़र आता है कि जैसे एक कलर की तय जमी है, उसके ऊपर दूसरे कलर की है, उसके ऊपर तीसरे कलर की है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोबियल मैट्स। दीज आर जनरली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑक्यूपाई द अपर जोन ऑफ मैट। उस मैट के टॉप पे जो जोन होगा वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्ची होंगे।
and these create oxygenic environment due to photosynthetic activity. अगर आपको याद हो, आपने BS में और MS में पढ़ा है कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है। सो फिर ये जो साइनोबैक्टीरिया टॉप पे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन पैदा होती है, वो इन्वायरमेंट एरोबिक हो जाती है। बिलो एरोबिक इज anaerobic interface of purple sulfur bacteria. इस anaerobic के नीचे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो एनारोबिक होते हैं, उनकी एक लेयर इंटरफेस होता है, मीन जहाँ पे वो जस्ट मिल रहे होते हैं। एक्सटेंसिव ब्लैक लेयर ऑफ प्रेसिपिटेटेड आयरन सल्फेट बिलो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नीचे आयरन सल्फेट की ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। ये आप यहाँ से देखें, इसको जो मैं कह रहा था, ये देखें, ये सैन लेयर है, ये देखें, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑक्सीडाइज्ड आयरन है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, और ये प्रेसिपिटेटेड आयरन सल्फाइड है। सो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो लेयर्स में क्या कहना चाहिए, अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम माइक्रोबियल मैट कहते हैं। सो दिस इज द स्कीमेटिक ड्राइंग of a microbial mat. Cyanobacteria form the surface layer of the microbial mat, but may be covered by a layer of sediment, this one, sediment, organic debris, or even cyanobacterial sheets containing a pigment that acts as a sunscreen, blocking excessive ultraviolet radiation. Often, a layer of oxidized iron appears below the cyanobacteria, this one, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। Followed by a layer of purple sulfur bacteria that thrive under anaerobic conditions. An extensive zone of sediment enriched layer is also enriched with precipitated iron sulfide is also formed. So this arrangement or this style of living is called as microbial mat. This is another example. This is another example. You can see the different colored layers. Microbial mat from bad water salt flats in Death Valley. Then comes the biofilms. Layer of organic matter and microorganisms formed by attachment and proliferation of bacteria on the surface of an object. So पिछली माइक्रोबियल मैट में और बायोफिल्म में फ़र्क समझें। माइक्रोबियल मैट में जो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेयर थी, लेकिन उसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं थी। बायोफिल्म्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर मिलके एक लेयर बनाते हैं और वो जनरली अटैच होती है विद द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो अटैच होती है, ठीक है। सॉलिड सरफेसेस आर सूटेबल फॉर बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दोज आर इनर्ट सरफेसेस सच एज रॉक्स, हल्स ऑफ शिप, जहाज जो है उसके ऊपर जो अर्शा होता है वो, लिविंग सरफेसेस, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, इवन पौधों का जो पोर्शन पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है उसके ऊपर भी बायोफिल्म्स बन सकती हैं। इवन अगर आपने वो एक मूवी आई थी बड़ी मशहूर टाइटैनिक, वो देखी हो, तो उसमें भी जब वो समुद्र में से टाइटैनिक का मलबा निकला है तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर बायोफिल्म्स बनी हुई थी। So this was about the microbial habitats in aquatic environment. ठीक है,
मैंने हैबिटेट आपको एक्सप्लेन किया था कि हैबिटेट का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लिविंग स्टाइल क्या होता है, वो रहते कैसे हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। नाउ व्हाट आर द एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स? एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स होती किस किस्म की हैं? वन इज द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वन इज द स्टैंडिंग वाटर और लैंडिंग हैबिटेट। इसमें कुछ मैंने पहले ही आपको बताया था, कुछ नए लफ्ज आपके लिए आएंगे, सो आप उनको अभी समझ लें। स्टैंडिंग वाटर और लैंटिक हैबिटेट, दिस इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स एंड बॉग्स। मीन्स पानी खड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। इसको फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, लेकिन इसमें पानी खड़ा होता है, चल नहीं रहा होता, तो इस हैबिटेट को हम लैंटिक हैबिटेट कहते हैं। और दूसरी ऑप्शन हो सकती है रनिंग वाटर और लॉटिक हैबिटेट, ये स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जो चश्मे हैं, नदियां हैं या दरिया हैं, जो चल रहे होते हैं। सो अगर खड़ा हो पानी, तो फ्रेश वाटर खड़ा हो अगर, तो हम उसको लैंटिक हैबिटेट कहते हैं। लेकिन अगर वो पानी चल रहा हो तो उसको हम लोटिक हैबिटेट कहते हैं। The second option may be brackish water. Brackish water, you know, salty water, marine water हो सकता है, जो समुद्र का पानी है, और सबटरेनियन वाटर, जो नीचे पानी है जमीन के, that is the subterranean water. So these are the water environments: freshwater environment, brackish water, marine water, and subterranean water. These are different environments of water. इनको हम one by one पढ़ते हैं. So first of all, we take up freshwater environment. Before going to the freshwater environment, ये जहन में रखें कि the study of freshwater habitat is called as limnology. बहुत जगहों पे इसकी इवन डिग्री हो रही है. So the study of freshwater habitat is called as limnology. And the study of freshwater microorganisms is called as microlimnology. अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं, हमने अभी बात की थी. इट इंक्लूड्स स्टैंडिंग वाटर और लैंटिक हैबिटेट्स लाइक लेक्स, पॉन्ड्स एंड बॉक्स, रनिंग वाटर और लॉटिक हैबिटेट लाइक स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. होता क्या है, फ़र्क क्या है लॉटिक और लैंटिक में? जो लॉटिक इन्वायरमेंट होती है, इसमें देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन एंड स्ट्रॉन्ग वाटर कंटेंट्स, क्योंकि इसमें पानी मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है और स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स होती हैं. जबकि जो लैंटिक इन्वायरमेंट है, ये क्योंकि खड़ा पानी होता है, इसलिए इसमें कम ऑक्सीजन होती है और वीक वाटर करंट होती हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि जनरली अगर वो जो एक मसला कहा जाता है ना, कि जनरली अगर आपको पानी चलता हुआ नज़र आ रहा हो और अपरेंटली उस पर कोई कंटेमिनेशन नज़र ना आ रही हो, तो वो पाक पानी होता है, साफ पानी होता है, उसे कंसिडर किया जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस यू कैन सी. ये चल रहा है पानी, तो सो इसमें यू कैन सी द वाटर करंट्स. सो इसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स की वजह से, इसमें प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है. जबकि जो खड़ा पानी होता है लैंटिक इन्वायरमेंट, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि उसमें वीक वाटर करंट्स होती हैं. Then comes the springs. From wherever subterranean water reaches the surface. So springs होते क्या हैं कि बाज़ जगहों पे जो सबटरेनियन वाटर होता है, ज़मीन के नीचे का पानी जो होता है, वो ज़मीन के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, चश्मे जिसे आप कहते हैं. These are of many types. Cold springs, which are fed by melted snow and ice in mountainous region. ठीक है. So ये कैसे बनते हैं?
ये जनरली मेल्टेड स्नो का जो पानी होता है या आइस का जो पानी होता है, that comes in the mountainous region. And the groundwater springs, these are fed by surface linked aquifers. के नीचे जो ग्राउंड वाटर एक्विफर है वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स. एक और कॉन्सेप्ट है थर्मल स्प्रिंग्स. दीज आर वार्म और हॉट स्प्रिंग्स originating from volcanic areas or great depths. So ये वार्म और हॉट स्प्रिंग्स इसमें शामिल हैं जो वॉल्केनिक एरिया से या ग्रेटर डेप्थ से निकल रहे होते हैं. Similarly comes sulfur and magnesium springs and acid springs. वो बाज़ जगहों पे लोग कहते हैं जी इस पानी से अगर नहा लें तो ये एलर्जी ख़त्म हो जाती है. दोज आर एक्चुअली वहाँ पे मिनरल्स होंगी सल्फ़र की, तो वो सल्फ़र रिच वाटर होता है. तो उसकी वजह से लोग कह देते हैं जी कि ये इस पानी से नहाने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है. देन कम्स द रेडियो एक्टिव स्प्रिंग्स. किसी ऐसी जगह से भी स्प्रिंग्स हो सकते हैं जहाँ पे नेचुरली रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है. So this is actually the concept of springs. So natural spring, जैसे मैंने कहा कि naturally जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है. और दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आप एक बोर करके खुद वेल बनाते हैं और उस पानी को ऊपर लेके आते हैं, आप सक करते हैं उस पानी को, ठीक है. And you know that this groundwater recharge is very important. जो सरफेस वाटर होता है लेक्स पे, that is actually contributing to the ground water जिसको हम पंप कर रहे हैं. अब हमारा आजकल इशू यही है कि हम एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं जबकि रिचार्ज कम हो रहा है, ठीक है. इसी वजह से कह रहे हैं कि फ्यूचर में पानी की शदीद कमी हो सकती है. So these are just the springs. So springs contain photosynthetic bacteria and algae from 10 raised to the power 2 to 10 raised to the power 8 organisms per ml. ठीक है. And heterotrophic may be 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 6 organisms per ml. And these primary producers are present along shallower edges of spring in association with rock surface where light is available and inorganic nutrients are in highest concentration. So ये जो primary producers हैं photosynthetic bacteria और heterotrophic organisms, ये कहाँ पे होते हैं? Along the shallower edges of spring, जो कम गहरे edges होते हैं वहाँ पे, in association with rock surfaces where light is available and inorganic nutrients are in highest concentration. Then comes the rivers and streams. Spring flow away from their subsurface source, merge with other water sources to form rivers and streams. ये जो चश्मे होते हैं ये आगे जाके आपस में मर्ज कर जाते हैं, दूसरे वाटर सोर्सेज के साथ मिल जाते हैं और इस तरह से दरिया बन जाता है या नदी बन जाती है. वाटर सोर्सेज कैन बी अदर स्प्रिंग्स. किन वाटर सोर्सेज से जाके मिलती हैं? ये दूसरे स्प्रिंग्स से मिल सकते हैं. टेरेस्ट्रियल रन ऑफ हो सकता है कि ज़मीन से पानी बह के आ रहा है, उसमें मिल सकते हैं. और हाइपोरियोस. What are the hyporeos? These are an interface where the subsurface water table meets and interact with the stream bed. जहाँ पे subsurface पानी इतना ऊपर आ गया होता है कि वो stream के bed के साथ interact कर रहा होता है. Means water level बहुत shallow होता है, पानी बहुत ऊपर आ चुका होता है, वहाँ उसमें जाके ये मिल सकते हैं. There is more dissolved organic matter
and heterotrophic population and concentration ranges from 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 9 organisms per ml. So इनमें डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, सो इस वजह से हेट्रोट्रॉफी की पॉपुलेशन 10 raised to the power 4 से लेके 10 raised to the power 9 organisms per ml तक हो सकती है. And the heterotrophs may be aerobic and facultative anaerobic. These have stable and localized planktonic communities in rivers as well. So rivers में stable और localized planktonic communities भी हो सकती है. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि planktonic का मतलब है जो वाटर में सस्पेंडेड होती हैं. And phytoplankton, free living जो पौधे हैं, these exist in streams but not stable. ये भी हो सकते हैं स्ट्रीम्स में, लेकिन स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो चल रहा होता है पानी तो आगे मूव कर जाते हैं. Then comes the lakes. Their depth is from few meters to more than 1,000 meters. And the surface area is few square meter to 100,000 square kilometers. And the types of lakes are bitter lakes, which are rich in magnesium sulfate, borax lakes, which are rich in sodium borate, and soda lakes, which are rich in sodium bicarbonate. These are different lakes. हमारे एक बड़ी क्या कहना चाहिए मशहूर पॉपुलर लेक जो कुछ साल पहले बनी है वो आपने सुनी होगी, अताबाद लेक थी. What are the subsections of lakes? अब एक लेक के सबसेक्शंस क्या हो सकती हैं? So there may, अब हम लेक्स की बात कर रहे हैं. There may be littoral zone. Littoral zone means edge of the lake where sunlight can penetrate to the bottom. लेक का जो एज होता है जहाँ पे सूरज की रोशनी बॉटम तक जा सकती है, that is called as littoral zone. Then comes Newton zone. This is air-water interface, including the upper few millimeter of the water column. जहाँ पे हवा और पानी मिल रहे होते हैं, ठीक है. Upper few millimeters of that is called as Newton zone. This layer is known to accumulate nutrients. Bacteria attach to this organic layer in a firm but reversible manner. Then comes limnatic zone. Limnatic zone is the surface layer of open water away from the littoral zone. Littoral zone से दूर जो surface layer है, that is called as limnatic zone, where light readily penetrates. जहाँ पे light readily penetrate कर सकती है. अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा तो आप और बेहतर समझ सकेंगे. Then comes the profundal zone. This is the area below the limnatic zone where light intensity is less than 1% of the sunlight. Light कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है. ये एच है, ये पानी और एयर की इंटरफेस है, ये सरफेस लेयर है ओपन वाटर में जो एज से दूर है, ठीक है. और प्रोफंडल जोन क्या है? लिम्नेटिक जोन, ये जो आगे जाके था उसके नीचे का एरिया जहाँ पे सनलाइट नहीं गुजरती है. एंड लास्टली कम्स द बेंथिक जोन which consists of lake bottom and associated sediments. बिल्कुल लेक का जो बॉटम होता है और उसकी एसोसिएटेड सेडिमेंट्स, जहाँ पे वो बॉटम और सेडिमेंट्स आपस में टच कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन. So from these definitions you realize that these are the subsections of typical lake based on sunlight. So on the basis of sunlight you can say that littoral zone is the edge, ठीक है. न्यूटन लेयर एयर वाटर इंटरफेस, लिम्नेटिक जोन वाटर से नीचे वाला,
प्रोफंडल जोन उससे नीचे, और बेंथिक जोन बिल्कुल नीचे जाके, जहाँ पे वो वाटर और सेडिमेंट्स आपस में मिल रही होती हैं। और ज़्यादा आप इससे समझ लें इसको। सो दिस इज द लिटोरल जोन, दिस इज द न्यूस्टन लेयर। ठीक है, आप सनलाइट को देखें और उससे अंदाज़ा करें। देन लिमिनेटिक जोन, उसके नीचे न्यूस्टन लेयर के नीचे लिमिनेटिक जोन, और then comes the profundal zone, and finally it is the benthic zone. So these are the different zones of lake based on sunlight. So sunlight की बेस पे जो लेक्स हैं उनको डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट सब सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जो मैंने अभी आपको डिफाइन की हैं। इसी तरह से लेक्स को टेम्परेचर की बेस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी हैं? दैट इज एपिलिमिनियन। एपिलिमिनियन इज द अपर जोन विच इज वार्म, ऑक्सीजन रिच and low nutrient. Then comes the hypolimnion, which is lower zone, has low temperature, low oxygen and nutrient rich. ठीक है, सो आप इनको अगर डिफ्रेंशिएशन करके याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि एपिलिमिनियन अपर जोन है, हाइपोलिमिनियन लोअर जोन है। एपिलिमिनियन वार्म होता है, हाइपोलिमिनियन लो टेम्परेचर होता है। एपिलिमिनियन ऑक्सीजन रिच होती है, हाइपोलिमिनियन लो ऑक्सीजन होती है। और ये एपिलिमिनियन लो न्यूट्रिएंट, whereas hypolimnion is nutrient rich. And the third one is called as thermocline, which is the middle zone. There is rapid change in temperature and stratification occurs, which makes lake static. So जिसकी वजह से इसमें stratification हो जाती है, different layers बन जाती हैं temperature के हिसाब से. So this is called as thermocline. So ये वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं. So this is the epilimnion, this is the hypolimnion, and this is the thermocline. So हमने lakes की बात की. Now what are the microbial characteristics in lakes? So microbial communities and interactions are complex and diverse. Complex होती हैं लेकिन बहुत किस्मों की होती हैं. There is extensive primary and secondary producers population. बहुत ज़्यादा population होती है primary और secondary producers की. The primary productivity is high in littoral zone. आपने देखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो एजेस होते हैं वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं. So primary productivity is high in littoral zone. Limnatic habitat is dominated by phytoplanktons. उसमें phytoplanktons ही होते हैं. और जो heterotrophs होते हैं, these vary with the depth. Depth के साथ इनकी population change होती है. जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा और इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी. अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड एल्गल पॉपुलेशंस, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स आल्सो कंटेन फंगल, प्रोटोजोन एंड वायरल पॉपुलेशन विच इंटरैक्ट्स विद फूड वेब. ठीक है, सो बैक्टीरियल और एल्गल पॉपुलेशन के अलावा उसमें स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स में फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरल पॉपुलेशंस भी होती हैं जो कि फूड वेब के साथ इंटरेक्ट करती हैं. फंजाई आर रेयरली प्लैंक्टोनिक बट दे सर्व एज पैरासाइट्स ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी. जो फंजाई होती हैं बहुत कम होता है कि ये प्लैंक्टोनिक हों, मतलब सस्पेंडेड वाटर में मौजूद हों, लेकिन ये प्लैंक्टोनिक एल्गी के ऊपर पैरासाइट के तौर पे मौजूद भी हो सकती हैं. ठीक है, अगर वहाँ पे प्लैंक्टोनिक एल्गी मौजूद है तो उस पर फीड करने के लिए वहाँ पे फंजाई भी हो सकती है. वायरसेस आर अबंडेंट इन फ्रेश वाटर
and they utilize bacteria, cyanobacteria, and microalgae. Protozoa are also important predators of bacteria and algae in particular. So बैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं, इनके ऊपर प्रीडेट करने के लिए, इनको खाने के लिए प्रोटोजोआ भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया और एल्गी के प्रीडेटर के तौर पे काम करते हैं। प्रोटोजोन एंड वायरल पॉपुलेशंस प्रोवाइड बैलेंस इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सो इनकी वजह से वहाँ पे एक बैलेंस कायम रहता है, ना किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ना किसी की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जिसकी अगर फ़र्ज़ करें, अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो प्रोटोजोआ उनके ऊपर प्रीडेटर का काम करते हैं, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम चलता है फ्रेश वाटर में। देन कम्स द ब्रैकिश वाटर। This is a broad term used to describe water that is more saline than fresh water but less saline than true marine environments. समुंदर के नमकीन पानी से इसमें सैलिनिटी कम होती है, लेकिन फ्रेश वाटर की सैलिनिटी से इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, there is a transitional area between fresh and marine water. So जहाँ पे समुंदर का पानी जाके दरिया में गिर रहा होता है, that is a sort of transitional area between fresh and marine water. And estuaries are part of a river that meets the sea is the best example. Estuaries इसकी examples हैं कि वो पार्ट ऑफ रिवर दैट मीट्स द सी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे रिवर जाके सी के साथ मिलता है। It has variable environment due to drastic change in salinity over relatively short distance. थोड़े फासले पे भी पानी की salinity जो होती है उसमें significant difference आ जाता है। So इसलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी वेरिएबल इन्वायरमेंट होती है। There is variation in salinity that ranges from 10 to 32% of salts. Estuaries are, in case of estuaries, primary producers are 10 to 10 raised to the power 7 organisms per ml, and this population varies with depth. And the heterotrophic activity is high, while the estuaries become anoxic due to high nutrient concentration. अगर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए तो जो एस्टुअरीज होती हैं वो एनॉक्सिक हो जाती हैं। Then comes the marine water environment. This is highly diverse, मुख्तलिफ किस्मों की होती है। Salinity is between 33 and 37% and can range in depth up to 11,000 meters. It is not static in shape and size and has considerable mixing and movements. There are two zones of ocean. Ocean के दो zones होते हैं, एक को हम photic zone कहते हैं और दूसरे को हम aphotic zone कहते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, फोटिक जोन क्या है, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है, aphotic जहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करती है। एंड लाइट कैन पेनिट्रेट अप टू 200 मीटर डिपेंडिंग ऑन टर्बिडिटी ऑफ वाटर। अगर पानी टर्बिड है तो लाइट कम डिस्टेंस तक ट्रैवल पेनिट्रेट करेगी, जबकि अगर पानी क्लियर है, टर्बिडिटी कम है, तो लाइट ज़्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सकेगी। What are the major habitats of marine environment? Marine environment के major habitats क्या हैं? Means marine environment में microorganisms,
किस तरह से रहते हैं। One is called as Newton layer. This is the surface of sea और एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, न्यूटन लेयर ओशंस में क्या होती है? दिस इज द सरफेस ऑफ सी, इसकी सरफेस जो है, या जहाँ पे एयर और पानी मिल रहे हैं। देन कम्स पेलाजिक जोन। पेलाजिक जोन क्या है? इट इज द वाटर कॉलम और प्लैंक्टोनिक हैबिटेट। पानी कितना है, दैट वाटर कॉलम or the planktonic habitat is the pelagic zone. Then come epibiotic. This is the surface on which attached communities occur. ये ऐसी surfaces हैं जिनके ऊपर दूसरी surfaces आके attach हो जाती हैं। Endobiotic, these are the organisms within the tissues of other larger organisms. एंडोबायोटिक क्या होते हैं कि बड़े ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, उनके टिश्यूज के अंदर छोटे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर लेते हैं। इस स्टाइल को, इस लिविंग स्टाइल को हम एंडोबायोटिक कहते हैं। या तो वो सरफेस के ऊपर रहते हैं, न्यूटन लेयर, या वो वाटर कॉलम में सस्पेंडेड होते हैं, पेलाजिक जोन, या वो क्या होता है, एपीबायोटिक होते हैं, सरफेसिस के ऊपर अटैच होते हैं, या वो एंडोबायोटिक होते हैं कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज के अंदर वो रहते हैं। सो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ द मैरीन इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट में किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। Algal blooms occur in eutrophic water bodies which may produce potent toxins which is called as red tide. ये आपको बड़ा क्लियर है, आप बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अगर किसी जगह पे वाटर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फिर एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस हो जाती हैं, और ये भी हो जाता है बाज़ का कि ज़्यादा एल्गी के ग्रो करने की वजह से वहाँ पे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसको हम रेड टाइड कहते हैं। Humans consuming fish polluted by these toxins can cause, अगर उस एरिया में से फिश लेके आप खाएंगे तो that can cause skin rash, eye irritation, vomiting, diarrhea, fever and joint pain. Fungi, protozoa and viruses in their role as predators and parasites are also important component of marine waters. ठीक है, सो मेरीन वाटर्स में पहले हमने एल्गी की बात की, अब हम कह रहे हैं कि वहाँ पे फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस भी मौजूद हो सकते हैं। What are the microbial characteristics of marine environment? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हमने अभी बात की थी कि देयर इज डाइवर्स माइक्रोबियल इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोबियल इन्वायरमेंट होती है। इन डीप वाटर माइक्रोबियल कंसंट्रेशंस आर हाईएस्ट within a Newton and drop below this region. So न्यूटन लेयर जो है वहाँ तक हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और जब आप उससे भी नीचे जाते हैं तो फिर ये पॉपुलेशन बहुत कम होती चले जाती है। बैक्टीरियल नंबर्स आर हाई इन कोस्टल वाटर देन इन ओपन सी। बैक्टीरिया आमतौर पर कोस्टल एरिया में हाई होते हैं ओपन सी की निस्बत। एंड द हेटेरोट्रॉफिक पॉपुलेशन वेरी विद डेप्थ and not as much as photosynthetic population. हेटेरोट्रॉफिक पॉपुलेशन डेप्थ के साथ वेरी करती है लेकिन उतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती जितने के फोटोसिंथेटिक पॉपुलेशन वेरी करती है। फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड वायरसेस आर important components of marine water. Then comes the subterranean water. This is the groundwater environment found inland in the subsurface zone. So subsurface zone में जो पानी मौजूद है that is called as subterranean water.
It includes shallow and deep aquifers. किसी जगह पे shallow aquifer होते हैं, किसी पे deep aquifer होते हैं. कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा गहराई में होता है और कहीं निस्बतन shallow होता है. Bacteria are the dominant type of microbes. यहाँ पे bacteria dominant microorganisms होते हैं. And in general, level of microbial activity is low in the intermediate and deep aquifer due to low nutrient level. इसलिए in general microbial activity जो है in the intermediate and deep aquifer is low due to low nutrient level. क्योंकि nutrient level कम होता है इसलिए microbial activity भी कम होती है. And that's all for aquatic environment. अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें इससे पहले कि मैं अगला चैप्टर शुरू करूं. जी. नो सर. नो क्वेश्चन. नो सर. ओके. सो अगर आप इसको अब आपको बुक भी मिल गई है, अगर आप इसको एक दफ़ा जस्ट आजकल आप लोग घरों पे ही होते हैं, एक दफ़ा उसको स्टोरी के तौर पे उसमें से पढ़ लेंगे ना आप तो ये डैम इजी है. बिल्कुल स्टोरी है एक किस्म की. आप उसको नॉवल के तौर पे पढ़ें तो आपको बड़ा इजी लगेगा. जी सर. सर असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन देनी है या सॉफ्ट भी दे सकते हैं? नहीं, सॉफ्ट ही दे देना आप. सॉफ्ट दें लेकिन कॉपी नहीं होनी चाहिए. मैंने उसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है. मैं उस पर टर्निटिन लगा के देखूंगा कि ये वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, प्लेजराइज्ड तो नहीं है कि आपने ऐसा उठा के डाल दिए हैं कहीं से. जी सर. ओके. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. दैट इज द एरोमाइक्रोबायोलॉजी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ की. सो अब तक हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, हमने एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली है, एंड द थर्ड वन इज एरोमाइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. सो खुश्की, पानी और हवा, ये तीन ही चीज़ें होती हैं ना. चौथा कंपोनेंट तो हमने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को बनाया है जो हर एक में हो सकता है. सो व्हाट इज एरोमाइक्रोबायोलॉजी? So it's clear from the name that the study of microbes living in air is called as aeromicrobiology. Practically, the study of microbes living in air and transported through air, that is the actual practical concept of aeromicrobiology. So not only the study of microbes living in air, but how they are transported in the air, that is also included in the aeromicrobiology. So in another word, you can say the study of aerosolization, aerial transmission, and deposition of biological materials is called as aeromicrobiology. एरोसोल्स आप समझते हैं, मैंने पहले भी ये आपको बताया था. एरोसोल्स होते हैं बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आप कह लें, जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं. जैसे कभी अगर आप कमरा, मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी, कभी कमरा बंद हो और उसमें से सिर्फ एक बारीक सा सुराख हो, आप उस कमरे में लेटे हो, अंधेरा हो और उसमें से एक लाइट आ रही हो, तो उस लाइट में आपको बारीक बारीक पार्टिकल्स नजर आते हैं. दोज आर द एरोसोल्स. ठीक है. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर. सो एरोसोलाइजेशन, एरियल ट्रांसमिशन, हवा में उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, एंड द डेपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स. सो बायोलॉजिकल मटेरियल्स एयर में कैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं और कैसे जाके डिपॉजिट होते हैं, दैट ऑल इज कवर्ड इन एरोमाइक्रोबायोलॉजी. आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी मुराद है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे वो क्यों कह रहे हैं आपको कि जी 6 फुट का फासला रखें. कि वो जो एरोसोल्स हैं, जब आप बात करते हैं तो वो जो एरोसोल्स आपके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, वो एरोसोल्स, दोज मे हैव वायरस इन देम एंड दोज कैन डिपॉजिट ऑन यू.
or you may inhale those aerosols. So in general उन्होंने practically ये देखा है कि तकरीबन 6 फुट का फासला सेफ फासला है कि अगर एरोसोल्स आपके मुंह में से निकले भी हैं तो वो 6 फुट का फासला ट्रैवल नहीं करेंगे। तो अगर दूसरा बंदा 6 फुट के फासले पे है तो वो सेफ रहेगा, ये उससे पहले ही एरोसोल्स नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। सो द स्टडी ऑफ एरोसोलाइजेशन, एरियल ट्रांसमिशन एंड डेपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स इज कॉल्ड एज एरोमाइक्रोबायोलॉजी। एयरबॉर्न पैथोजेंस हो कौन कौन से सकते हैं? तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एयरबॉर्न पैथोजेंस की बात करेंगे। Up to 70% of plant pathogens are airborne. So plant pathogens जो हैं 70% तक उनमें से जो हैं वो airborne हैं, such as rusts caused by fungi, some citrus bacterial diseases. So plants में 70% तक pathogens जो हैं airborne होते हैं। और लाइव स्टॉक में ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसिलोसिस, these are the bacterial diseases, means these are caused by bacteria. इनके पैथोजेंस कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं जो एयर के थ्रू मूव करते हैं। देन एस्परजिलस एंड क्रिप्टोकोकस is a fungi. Foot and mouth is a viral disease. अब इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आप देखें फुट एंड माउथ की कि in 1967 an outbreak of foot and mouth disease in England lasted only for 4 months and it affected over 2,300 farms and resulted in the loss of almost 450,000 एनिमल्स, 4.5 लाख एनिमल्स इससे मुतासर हुए थे। सो दिस इज हाउ फैटल इज द एयरबॉर्न पैथोजेंस। ठीक है। डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस, हमने प्लांट्स की कुछ एग्जांपल्स ली, हमने लाइव स्टॉक की ली, अब कुछ ह्यूमन डिजीजेस जैसे एंथ्रेक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, टाइफॉइड फीवर है, लेगियोनोलोसिस है, all these are the bacterial diseases which may be airborne. Fungal diseases may include sick building syndrome, ये एक डिजीज का नाम है। Viruses are common colds, flu, chicken pox और आजकल का मशहूर व मरूफ कोरोना वायरस। So these are some examples of airborne plant pathogens. Dutch elm disease, ये उसका पैथोजन है। पोटैटो लेट ब्लाइट, लीफ रस्ट, ये उनके पैथोजन साथ साथ दिए हुए हैं। एक चीज आपको सिर्फ इसमें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है, इस फिगर में देखें आप, बेल्जियम में मिड जून में फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस जो पोटैटो की एक डिजीज है, 1845 में इस डिजीज की वजह से कहत फैल गया था। कैसे कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस स्प्रेड फ्रॉम बेल्जियम मिड जून थ्रू आउट यूरोप बाय मिड अक्टूबर। मिड अक्टूबर तक ये पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है। एंड famine related deaths are estimated for around 7.5 लाख से 10 लाख तक डेथ्स हुई इससे। जो फैमिन हुआ, कहत फैला, उससे ये पोटैटो की इस डिजीज की वजह से। ठीक है। जो आप देखें जून से अक्टूबर तक इन 2-3 कितने बनते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने में 7.5 से 10.5 लाख लोग मर गए थे। And economic devastation from this famine caused the population of Ireland to decrease from approximately 8 million to 4 million from 1840 to 1911.
1840 से 1911 तक 80 लाख से आयरलैंड की आबादी 40 लाख हो गई थी। So this is how quickly the airborne pathogens they are spread. These are the examples of some airborne animal pathogens. So these may be tuberculosis, brucellosis, yet different examples हैं, rabies, influenza, foot and mouth disease, and these are the examples of airborne human pathogens. So ये bacterial diseases हो सकती हैं, fungal diseases हो सकती हैं, viral diseases हो सकती हैं, और हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और डेंगू फीवर वगैरह, ये सारी एयरबॉर्न ह्यूमन पैथोजेंस की एग्जांपल्स हैं। सो जब एयर में पैथोजेंस होते हैं तो एयर में टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एयरबॉर्न टॉक्सिन्स जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? These are also, there are also some microbial toxins. So जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एयरबॉर्न हो सकते हैं, जो एयर में फैल सकते हैं, ठीक है? जैसे बोटुलाइनल टॉक्सिन। बोटुलाइनल टॉक्सिन क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम एंड इट इज ए बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट, ठीक है? इसको बायोलॉजिकल वार के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज ए न्यूरोटॉक्सिन एसोसिएटेड विद कंटेमिनेटेड फूड इनहेलेशन। सो ये न्यूरोटॉक्सिन है जो आपके नर्व्स को, आपके असाबी निज़ाम को मुतासर करता है। और कैसे फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड से या इनहेलेशन से। एंड इट्स लीथल डोज बाय इनहेलेशन इज 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ टॉक्सिन। अगर आप 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ दिस बोटुलाइनल टॉक्सिन इनहेल कर लें तो आपको ये प्रॉब्लम काज हो सकता है। एंड देयर इज डेथ विद इन 12 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर। और एक्सपोजर के 12 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। एंड डेथ काज बाय, और डेथ क्यों होती है? दिस इज बाय पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। आपके रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, और जब रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं करते हैं तो आपकी रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, ब्रीदिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। Then another toxin is staphylococcal enterotoxin. This is produced by bacteria and is highly resistant to inactivation in association with aeromicrobiological pathway, ठीक है? सो ये बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे से, या इसको इनएक्टिवेट करना, ये एयर से इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। And the lethal dose is estimated to be 25 microgram by inhalation. And the symptoms occur after 1 hour exposure by aerosolization. So aerosols के थ्रू इसकी अगर एक्सपोजर हो जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम्स हो सकती हैं। वो सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? दोज में भी क्रैम्पिंग, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये डिफरेंट डिजीजेस हैं। Then another type of microbial toxin is lipopolysaccharides. ये वो टॉक्सिन्स की हम बात कर रहे हैं जो एयर में मौजूद हो सकते हैं। Lipopolysaccharides. These are airborne toxins. These are derived from the outer membrane of gram-negative bacteria. So gram-negative bacteria की outer membrane से ये produce होते हैं. These are also referred to as endotoxin. And symptoms are coughing, chest tightness, shortness of breath, fever, and wheezing extra. वो ये सांस लेने की जो आवाज़ नहीं होती, या आवाज़ का जब गला खराब होता है या आपके चेस्ट ब्लॉक हुई होती है, वो जो आवाज़ आ रही होती है, दैट इज wheezing. इसके सोर्सेज क्या होते हैं? कॉटन मिल्स,
solid waste, sewage treatment plants, haystacks, and poultry houses. These are the sources from where these can be spread to the air. Lipopolysaccharide is liberated when gram-negative bacteria lyses in these environments or is actively growing. So इन environments में जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टूटता है, डेड होता है या बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, तो उस वक्त ये लिपोपोलिसैकेराइड्स रिलीज होते हैं. Daily exposure of as little as 10 endotoxin units per cubic meter from cotton dust can cause asthma and chronic bronchitis. So अगर 10 एंडोटॉक्सिन यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर कॉटन डस्ट से प्रोड्यूस हो रहे हों तो ये एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस काज कर सकते हैं. What are the bioaerosols? ये हमने बात की जनरल एरोसोल्स की, पहले टॉक्सिन्स की बात की हमने. अब बायोएरोसोल्स क्या होते हैं? So aerosol, you know, हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. These are the particles suspended in air. और बायोएरोसोल्स क्या हैं? ये एयरबॉर्न पार्टिकल्स कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, उनको हम बायोएरोसोल्स कहते हैं. ठीक है. The bioaerosols vary in size. इनका साइज डिफरेंट हो सकता है. These pose serious threat to human health, mainly through respiratory intake and deposition. So, human health के लिए serious threat है. ज़्यादातर respiratory intake होती है और deposition होती है. respiration के थ्रू ये इनके intake होती है और deposit होते हैं. ये US EPA, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने साइज की बेस पे इसकी दो कैटेगरीज बनाई हैं. एक को हम PM10 कहते हैं और दूसरे को हम PM2.5 कहते हैं. PM10 का मतलब है पार्टिकल्स विद डायामीटर लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर और 10,000 नैनोमीटर. ठीक है. Whereas PM2.5 are particles with diameter less than 2.5 micrometer or 2500 nanometer. ठीक है. So this is the categorization of PM10 and PM2.5. This is the categorization of US EPA. Atmospheric particulate concentration is expressed in microgram per cubic meter. So USA National Ambient Air Quality Standard, NAAQS, National Ambient Air Quality Standards, उन्होंने कहा है जनाब कि एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए कि PM10 जो हैं इनकी 24 आवर एवरेज जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जबकि जो एनुअल एवरेज है that should not be more than 50 microgram per cubic meter. ठीक है. जबकि जो PM2.5 हैं 24 hours average is 65 microgram per cubic meter while annual average is 15 microgram per cubic meter. So these are the US National Ambient Air Quality Standards. Symptoms of particulate matter inhalation include decreased pulmonary function, chronic coughs, bronchitis, and asthma attacks. Airborne particles can travel long distances. Smaller particles tend to travel greater distances than larger particles. कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा दूर तक जा सकेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जल्दी नीचे गिर जाएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे.
Stokes' law is used to describe the fall of particles through a dispersion medium such as air or water. ठीक है, so Stokes' law यूज किया जाता है टू डिटरमन के रेट ऑफ फॉल क्या होगा. सो आप देख सकते हैं कि सैंड का रेट ऑफ फॉल ये है, सिल्ट का ये है, क्ले का ये है और क्लोस्ट्रीडियल स्पोर्स का ये है. Small particles are a greater concern because they, छोटे पार्टिकल ज़्यादा फिक्र वाली बात है. क्यों? they stay suspended for longer time. वो ज़्यादा देर तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं. they travel farther, ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं. and they tend to move farther in the respiratory system. और अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं. So we expect viruses to persist as bioaerosol longer than bacteria which are much larger. ठीक है, so bioaerosols ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं बैक्टीरिया की निस्बत, क्योंकि बैक्टीरिया इनसे साइज में मच लार्जर होते हैं. साइज ऑफ बायोएरोसोल्स क्या हो सकता है? जनरली द साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 100 micrometer in diameter. And on the basis of size, one is called as nuclei mode, that is less than 0.1 micrometer. And these are the smaller particles which are considered in nuclei mode if their size is less than 0.1 micrometer. Accumulation mode, the size is 0.1 to 2 micrometer. Coarse mode, more than 2 micrometer. And this is the idea you can have from here. So this is the nuclei mode. So इसमें nuclei mode है. Then comes the accumulation mode, जिसमें viruses वगैरह आते हैं. This is accumulation mode, 0.1 to 1 micrometer. Then comes the coarse mode, 1 to 100 micrometer. इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ आते हैं. ठीक है, so यहाँ तक जो हैं ये फाइन पार्टिकल्स हैं और ये आगे जो हैं these are the coarse particles. What is the composition of bioaerosols? Bioaerosols की composition क्या होती है, उनमें होता क्या है? The composition of bioaerosols depends on various factors like type of microorganisms, type of toxin, type of particles, gases in which they are suspended. ठीक है, so बायोएरोसोल्स की कंपोजिशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स कौन से हैं और गैसेस कौन सी हैं जिसमें वो सस्पेंडेड हैं. सो व्हाट इज एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवेज? एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवेज होते क्या हैं? It describes the launching of bioaerosols into the air, the subsequent transport via diffusion, dispersion of these particles, and finally their deposition. So we can define aeromicrobiological pathway as the launching of bioaerosols into the air. Air में जाते कैसे हैं? Subsequent transport via diffusion, diffusion की थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, dispersion of these particles फैलते कैसे हैं, and finally their deposition और आखिर जाके डिपॉजिट कैसे होते हैं. So all these collectively is called as aeromicrobiological pathway. So we can say the three major processes in aeromicrobiological pathway are included. Those are launching,
transport via diffusion and dispersion, and deposition. So this is a typical example. As shown in this figure, a cough or sneeze launches infectious microbes into the air. Anyone in the vicinity may inhale the microbes, resulting in a potential infection. So यही वो एक SOP है जिससे जो हमें कोरोना के केस में भी केयर करने का कहा जा रहा है कि ऐसे आप इतना फासला रखें कि वो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो इन्फेक्शियस वायरस है इस केस में, वो आप तक ना पहुंच सके. सो इन प्रोसेसेस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जो हमने मेजर कहे हैं एरो माइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे के प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज द लॉन्चिंग. So launching is the suspension of particles in the atmosphere, and it includes air turbulence, हवा कितनी तेज चल रही है, generation, storage, treatment and disposal of waste materials. वेस्ट मटेरियल्स कितना जनरेट हो रहा है, आप स्टोर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं, इससे भी वो पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं एयर में. कि आप कितना, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एयर में जा सके. आपकी स्टोरेज पुअर है, ज़्यादा चांसेस होंगे. आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे उसकी, तब भी ज़्यादा चांसेस होंगे. और आप उसको डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं, अगर आप उस वेस्ट मटेरियल को जिसमें बायो एरोसोल्स हैं, अगर आप ऐसे उठा के बाहर फेंक रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स एयर में जा सकता है. देन natural mechanical processes such as action of water and wind on contaminated surfaces. पानी या हवा एक contaminated surfaces से आके टकराती है तो वो अपने साथ कुछ बायो एरोसोल्स को कैरी करती है, और दूसरी जगह पे जाके जब वो एयर टकराती है तो वो उनमें से कुछ एरोसोल्स को वहाँ पे छोड़ जाती है. रिलीज ऑफ फंगल स्पोर्स, या फंजाई स्पोर्स रिलीज करते हैं जो पैथोजन हो सकते हैं. अब ये लॉन्चिंग दो किस्म की हो सकती है. दैट मे बी फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स का मतलब होता है कि जहां पे आप पिन पॉइंट कर सकें, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सोर्स कहाँ से है, कि कहाँ से ये निकल रहे हैं. ठीक है, जैसे पाइल ऑफ ए बायोसॉलिड मटेरियल, एक बायोसॉलिड मटेरियल का एक ढेर लगा हुआ है तो अंडरस्टूड चीज़ है कि वहाँ से वो निकल रहे हैं बिफोर इट इज़ अप्लाइड ओवर ए फील्ड. लेकिन जब आप उसको फैला देंगे, उस बायोसॉलिड मटेरियल को जब आप फैला देंगे सारी सरफेस के ऊपर, तो उस वक्त वो फिर पॉइंट सोर्स नहीं होगा, उस वक्त वो नॉन पॉइंट सोर्स बन जाएगा. जब वो एक ढेर की शक्ल में मौजूद है तो देन इट इज़ ए पॉइंट सोर्स, लेकिन जब वो फैल जाएगा तो देन इट इज़ not a point source. So this point source is instantaneous or may be continuous. ठीक है, एकदम से भी निकल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक बॉटल थी, वो आपने खोल दी, उसमें कोई थे बायो एरोसोल्स, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, आपने फौरन उसको बंद कर दिया. कंटिन्यूस क्या है कि आप कंटिन्यूसली जो है घर का पानी है, फर्ज करें वेस्ट मटेरियल है, वो आप डालते जा रहे हैं खेत में, तो वो नज़र आ रहा है ना, एक सोर्स, एक पाइप नज़र आ रहा है जिसमें से वो निकल रहा है. दैट इज ए कंटिन्यूस सोर्स. नॉन पॉइंट सोर्स क्या होगा? इट हैज़ ए वाइडर एरिया. रिलीज ऑफ बायो एरोसोल्स फ्रॉम ए लार्ज फील्ड दैट received an application of biosolids. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फार्म यार्ड मैन्योर है विच हैज सम पैथोजेंस, आपने वो स्प्रेड कर दिया एक फील्ड में, तो वो सारे फील्ड में से वो एरोसोल्स एयर में जा रहे होंगे. लीनियर क्या हो सकती है कि एज पासिंग एयरक्राफ्ट रिलीजिंग बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के
एक जहाज गुजर रहे हैं और वो पीछे कोई बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे कोई बायो एरोसोल छोड़ता जा रहा है। जैसे शुरू शुरू में लोगों ने डेंगू के बारे में कहा था जी कि डेंगू जो है ये खास अमेरिका ने जी फ्रांस वार में ये फैलाया था, ठीक है। सो दैट मे बी ए रीज़न। सो पॉइंट सोर्स कम एरिया में होता है, आप उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स में मुश्किल होता है, ज़्यादा एरिया पे होता है, लीनियर भी हो सकता है और आपके लिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। This was about the launching. Then comes the transport. Dissemination of airborne microbes over long distances. ठीक है, ये क्या है कि वो किसी तरह से जो हमने अभी डिस्कस किया, जो बायो एरोसोल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो गए, वो लॉन्च हो गए एयर में चले गए। अब वो एयर में लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल करते हैं, how they are transported, dissemination of airborne microbes over long distances. So transport can be defined in terms of time and distance. इसको टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब माइक्रो स्केल ट्रांसपोर्ट क्या होगी कि 10 मिनट के अंदर, अंडर 10 मिनट्स एंड 100 मीटर्स, 10 मिनट के अंदर ये 100 मीटर तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और ज़्यादातर ये बिल्डिंग्स में होता है। और माइक्रो स्केल ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए 10 मिनट से 1 घंटा लगता है इनको, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन। देन कम्स मेसोस्केल ट्रांसपोर्ट, इट टेक्स डेज and can be transported to 100 किलोमीटर। सो कुछ दिनों तक ये 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। और फाइनली द मैक्रो स्केल ट्रांसपोर्ट, द टाइम एंड डिस्टेंस इज फर्दर एक्सटेंडेड, के टाइम भी कई दिन लगते हैं और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू फार ऑफ प्लेसेस। Then comes the deposition. The last step in aeromicrobiological pathway is deposition. कि पहले वो एयर में गए, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुए, अब डिपॉजिट कैसे होते हैं। The last step in aeromicrobiological pathway is deposition. So that may be how they deposit, that may be gravitational settling due to force of gravity on particles heavier than air. एयर से हैवियर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। डाउनवर्ड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन which is caused by natural air currents that promote and enhance the downward movement. एयर डाउनवर्ड मूवमेंट है और डिफ्यूजन की वजह से ऊपर कंसंट्रेशन कम है, नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर से नीचे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। Then surface impaction, processes by which particles make contact with surfaces such as leaves, trees, walls, etc. मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी कि एयर आ रही है जिसमें बायो एरोसोल्स हैं, वो आके टकराई से पत्तों के साथ और आगे चले गए, लेकिन जब वो पत्तों के साथ टकराई तो कुछ बायो एरोसोल्स को वहाँ पे छोड़ गई, दीवार के साथ टकराई, कुछ बायो एरोसोल्स को वहाँ पे छोड़ गई। दिस इज डेपोजिशन। एंड फाइनली रेन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डेपोजिशन, बारिश से या ये जब बिजली चमकती है उससे भी ये डिपॉजिट हो सकते हैं। सो हमने एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे डिस्कस किया कि ये कैसे एयर में लॉन्च होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे जाके डिपॉजिट होते हैं। इस सारे कम्बिनेशन को हमने कहा था कि एरोमाइक्रोबायोलॉजिकल पाथवे कहते हैं। Now, what is the microbial survival in the air? How they survive in the air? How the microorganisms they survive in the air, or the bioaerosols survive in the air? There is limited time frame in which microbes remain biologically active.
सो इसी वजह से अगर इसको आपको रिलेट करें प्रेजेंट कंडीशन से, इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप ओपन एयर में एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आजकल इसमें भी कोरोना वायरस में भी चांसेस कम हो जाते हैं इस वजह से कि एक तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरा ये ज़्यादा देर तक एयर में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे अगर आपने इनहेल नहीं कर लिए तो ये वहीं पे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस कम रखा हुआ है और आपने वहाँ से इनहेल कर लिए हैं दूसरे बंदे से तो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा। So microorganisms have specific mechanism for protection from harsh environment and increase their biological activity to survival. So microorganisms का special mechanism है जिसके थ्रू ये harsh environment में survive करते हैं, खुद को protect करते हैं और अपनी biological activity को maintain रखते हैं। What are the factors which affect the microbial survival in the air? So those are relative humidity, हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से, temperature, radiation, oxygen content and open air factors. अब इनको हम एक एक करके लेते हैं। relative humidity. So the gram negative जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, they do better in low humidity. अगर कम ह्यूमिडिटी है तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। Gram positive do better in high humidity. So viability depends upon structural changes in lipid bilayer in cell membrane. वो क्यों होती है viability के, ये किस पे डिपेंड करती है कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक डबल लेयर होती है उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। अगर वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं वो सूटेबल आ रही हैं उस ह्यूमिडिटी को, लो ह्यूमिडिटी है, ड्राई कंडीशंस हैं, उसकी वजह से इसकी लिपिड बाइलेयर में जो चेंजेस आ रही हैं वो सूटेबल हैं, अगर इसको तो ओके वेल एंड गुड, ये सर्वाइव करेगा। अगर वो सूटेबल नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर उसने अडेप्ट कर लिया है लो ह्यूमिडिटी को तो ये वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। Then comes temperature. This is the major factor in inactivation of microorganisms. At high temperature, desiccation and protein denaturation occurs. So high temperature पे desiccation और protein denaturation हो जाती है। And at freezing temperatures, some lose viability due to formation of ice crystals on their surface. ठीक है, उनकी सरफेस के ऊपर आइस की क्रिस्टल्स बन जाती हैं जिसकी वजह से वो वायबिलिटी लूज कर जाते हैं। Then comes the radiation. Bacteria, virus, fungi and protozoa, they are damaged by shorter UV wavelength and ionizing radiation such as X-rays. And oxygen content, when oxygen is converted to more reactive form such as superoxide radicals, hydrogen peroxide, hydroxide radicals, this can be a factor then. These radicals arise naturally in the environment from the action of lighting, UV radiation, pollution, etc. And the reactive forms of oxygen damage DNA by mutation. So अगर reactive forms ऑक्सीजन की ज़्यादा है वहाँ पे तो क्या करेंगी, वो इसको DNA को mutate कर देंगी। Then last one is the open air factors. Open air factor means the environmental effect that cannot be replicated in laboratory experimental settings. वो conditions आप laboratory में create नहीं कर सकते, उनको हम open air factors कहते हैं। It is closely linked to oxygen toxicity and is defined as a mixture of factors produced when ozone and hydrocarbons react. जब ओजोन और हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त जो मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं उसको हम ओपन एयर फैक्टर्स कहते हैं। एंड दीज काज इंक्रीज्ड इनएक्टिवेशन रेट्स ऑफ मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहीं से हम शुरू करेंगे एक्स्ट्राम्यूरल माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, एरोमाइक्रोबायोलॉजी इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल होती है आउटडोर इन्वायरमेंट की एयर
और इंट्राम्यूरल होती है इनडोर इन्वायरमेंट की एयर, जैसे लेबोरेटरी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या ओपन ग्राउंड में। दैट इज एक्स्ट्रा एंड इंट्राम्यूरल एरो माइक्रोबायोलॉजी। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। सर नो अपना मेलिंग एड्रेस सेंड कर जी, दीजिएगा ग्रुप में। सर अपना मेल ना सेंड कर दीजिएगा ओके मैं कर ग्रुप दूंगा में। जी। नो क्वेश्चन। जी सर। ओके, नो सर। ऐसे ऐसे करते हैं आपको ना, आप उसको, ये जो आप बनाएंगे साइकिल्स, ये सारे आप जी पोस्टर सर। की फॉर्म में बनाएंगे यार, टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे। पोस्टर का तो पता है ना आपको, पोस्टर क्या होता है जो पावर पॉइंट पे बनता है, जो कॉन्फ्रेंसिस वगैरह में दिखाए जाते हैं। सो आप पोस्टर्स बनाएंगे, उस पर पता नहीं अपना सर। काम लिखेंगे। अगर वो ठीक होगा, अच्छा होगा, तो मे भी कि मैं उसको प्रिंट करवा के लैब में लगा दूं। ठीक है, आपने पोस्टर बनाना है पावर पॉइंट के ऊपर, और एक चार्ट के साइज का होगा। एक साइकिल, एक चार्ट, जो आम चार्ट नहीं होता, ड्राइंग चार्ट, जी सर। उससे ज्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। उसी पे आपने अपनी सारी चीजें सेट करनी है। ये साइकिल भी वहीं पे ड्रा करना है, ये लगाना है, और उसी पे आपने वो डेफिनेशंस जो हैं वो लिखनी है, और साथ में अपना नाम लिखना है और एजी नंबर लिखना है, और वो फिर मुझे आपने ईमेल कर देना है। ठीक है, तो जी सर। आपको नाइट्रोजन साइकिल कहा है, फास्फोरस साइकिल कहा है, सल्फर साइकिल कहा है, कार्बन साइकिल कहा है, 4 साइकिल्स कहे हैं। ठीक है, सो आप 4 जी पोस्टर्स सर। बनाएंगे। 4 पोस्टर्स बना के आप मुझे ईमेल करेंगे मेरे ईमेल एड्रेस पे। पोस्टर्स का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इट शुड बी कैमरा रेडी, कि मैं वो फ्लैश पे लेके उसको भेजूं किसी प्रिंटर के पास, और वो मुझे उसको फ्लैक्स पे प्रिंट कर दें। ठीक है, और चलें जी सर। मैं आपको 1 हफ्ता और दे देता हूँ। इस ट्यूसडे की बजाय अगले ट्यूसडे तक आप कर लें। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगी। एक तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें, दूसरा आपको पोस्टर बनाना आएगा कि पावर पॉइंट पे पोस्टर कैसे बनाते हैं। साइज मैंने आपको बता दिया है कि जो ड्राइंग बोर्ड का चार्ट होता है, ठीक है, उसका आप लोग, हम लोग सब लोग प्राइमरी क्लासेस में, मैट्रिक वगैरह में वो चार्ट बनाते रहे हैं, उस चार्ट वाला साइज होगा इसका। ठीक है, और इस तरह के जी 4 पोस्टर बना के आपने मुझे ईमेल करने हैं अगले मंगल तक। जी सर। जी, एनी क्वेश्चन? अब्दुल वहीद, आपको आपको आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। चलें जी, ठीक है। ये चैप्टर में आज मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा इसको अपलोड, जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। या चलें, या आज वाला इतना जो है ये कर दूंगा, बाकी का बाद में कर देंगे। जी सर। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच जी। अब आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि आपने क्लास तीनों पीरियड्स ट्यूसडे को रखने हैं, फ्राइडे को रखनी है, या ऐसे ही चलना है कि ट्यूसडे को और 2 फ्राइडे को। यू हैव दी ऑप्शन, जो भी हो मुझे व्हाट्सएप कर दें आपस में तय करके। जी ठीक है, चलें, थैंक यू जी वेरी ठीक है सर। मच जी। टेक केयर, अपना ख्याल करें, अपने साथ वालों का ख्याल करें, बाहर ना निकलें, घरों पे रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज।